Let us pray. चलिए हम दुआ करेंगे। Dear loving Heavenly Father, ए हमारे आसमानी प्यारे बाप, thank you, Lord, for helping us to worship in spirit and in truth. रूह में और सच्चाई में आपकी इबादत करने का मौका आपने जो दिया है खुदावन, शुक्रिया अदा करते हैं। Thank you, Lord, for the wonderful salvation that you have given us. आपने जो अजीम नजात हमें दी है खुदावंद, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। Thank you, Lord, for wonderful Savior, blessed Lord Jesus Christ, who loved us and gave Himself for us. और हमारे प्यारे खुदावंद यीशुआ जो हमारे अजीम नजात दहिंदा हैं, जिसने आप हमसे मोहब्बत जताकर जान दी है, उनको लेकर शुक्र अदा करते हैं। As we gathered around the Lord's table, और जैसे ही हम हमारे खुदावंद की मेज़ के इर्द गिर्द आते हैं, help us to, Lord, examine our lives. खुदावंद दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी ज़िंदगियों को जांचने का मौका हमें दें। Please cleanse me with the precious blood of Lord Jesus Christ. यीशुआ के बेशकीमत खून में मुझे धोकर नेको पाक बनाएं। Please cleanse me and hide me behind thy cross. मुझे भी धोकर खुदावंद आपके सलीब के पीछे मुझे छुपा दीजिए। We are binding the powers of darkness in the mighty name of Lord Jesus Christ. यीशुआ के ताकतवर अजीम नाम में गैबी ताकतों को हम कैद करते हैं। Please bless this time. इस वक्त पर आपकी बरकत मांगते हैं। In Lord Jesus Christ's precious name we pray. यीशुआ के मुकद्दस नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। Amen. आमीन। Let us turn our Bibles to 2 Chronicles again. और एक बार हम दूसरे तवारीख की किताब हम देखेंगे। We're going to continue the meditation from 2 Chronicles. दूसरे तवारीख की किताब में से हमारा मुताला हम जारी रखेंगे। 2 Chronicles 7 chapter. दूसरा तवारीख बाब नंबर 7। 2 Chronicles 7 chapter from verses 11 to 22. We're going to read responsively. 11 से लेकर 22 तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। दूसरे तवारीख की किताब दूसरे तवारीख बाब नंबर 7 और 11 से लेकर 22 तक बारी बारी से। यूं श्लोमो ने यहोवा का घर और बादशाह का घर तमाम किया, और जो कुछ श्लोमो ने यहोवा के घर में और अपने घर में बनाना चाहा, उसने उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for a house of sacrifice. अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and my heart shall be there perpetually. और तू अगर मेरे हुजूर वैसे ही चले जैसे तेरा बाप दावीद चलता रहा, और जो कुछ मैंने तुझे हुक्म किया उसके मुताबिक अमल करे, और मेरे आईन और अहकाम को माने, Then will I establish the throne of thy kingdom according as I have covenanted with David thy father, saying, There shall not fail thee a man to be ruler in Israel. पर अगर तुम बरगश्ता हो जाओ और मेरे आईन और अहकाम को, जिनको मैंने तुम्हारे आगे रखा है, तर्क कर दो, और जाकर गैर माबूदों की इबादत करो और उनकी सिजदा करो, Then will I pluck them by the roots out of my land which I have given them, and this house which I have sanctified for my name will I cast out of my sight, and will make it to be a proverb and a byword among all nations. और ये घर जो ऐसा आलीशान है, सो हर एक जो इसके पास से गुजरेगा हैरान होकर कहेगा, यहोवा ने इस मुल्क और इस घर के साथ ऐसा क्यों किया? And it shall be answered, because they forsook the Lord God of their fathers, which brought them forth out of the land of Egypt, and laid hold on other gods, and worshipped them, and served them. Therefore hath he brought all this evil upon them. May the Lord bless this portion. इस पर हमारे खुदा अपनी बरकत दे। In this short account we see
इस छोटे हिस्से में हम ये देखते हैं we see Solomon finishing the house of the Lord. हम ये देखते हैं कि श्लोमो बादशाह खुदा का घर बनाना इख्तिताम तक पहुंचाता है। Solomon had a wonderful father. बादशाह श्लोमो को तो बहुत अच्छा बाप था And David was a man after God's own heart. और उसका नाम दावीद बादशाह था और वो खुदा के मनपसंद इंसान था। That means he knew exactly what was in the God's heart. इसका मतलब ये होता है कि वो जानता था कि खुदा के दिल में क्या गुजर रहा है। David certainly knew what was in God's heart for his people and for his family. दावीद यकीनन जानता था कि खुदा के दिल में अपने लोगों के वास्ते और अपने हैकल के बारे में क्या ख्याल हैं। God was molding this chosen vessel through several experiences. बहुत सारे तजर्बात के जरिए से खुदा यहोवा ने दावीद को उसने एक अच्छा बर्तन बनाकर तरतीब दी थी। He is called as the sweet psalmist of Israel. उसको इस्राएल का एक अच्छा सा साजदार मुगन्नी कहलाता है। And if you see the background of each psalm, अगर आप हर एक मजमूर का पस मंजर देखेंगे either he is celebrating a success, तो वहाँ हम देखते हैं कि शायद वो एक फतह को वो सेलिब्रेट करता है, or we can see the tears see from the psalms, या तो उन मज़ामीर में उनके दिल का गम बयान होता है, or he was asking God to pay attention to his prayer. या अपनी दुआ पर तवज्जो होने के लिए खुदा से इल्तिमास करते रहता है। And through all these experiences, today we have wonderful psalms. और उनके ये सारे तजर्बात के ज़रिए से आज हमारे दरमियान हमारे सामने इतने अच्छे मज़ामीर आ पहुँचे हैं। He was not only a sweet psalmist of Israel, but he was also a man of war. दावीद इस्राएल के लिए एक अच्छा शीरीन गाने गाने वाला ही नहीं बल्कि एक मर्द जंग भी था। And he gathered the material for the house of God. खुदा के घर के लिए जो सामान की जरूरत है उसने इकट्ठा किया था। But God instructed David not to build the house. लेकिन खुदा ने दावीद से कहा कि तू मेरे हैकल को मत बनाना। Instead, he should let Solomon build his house. लेकिन खुदा ने उसके बेटे श्लोमो को अपने हैकल तामीर करने की इजाजत दी। As we have seen in the worship message, जैसे ही हमने इबादत के पैगाम में सुना था, God did not let David to build the house, but he gave David the pattern of the God's house. खुदा ने दावीद को अपने हैकल बनाने का इजाजत नहीं दिया बल्कि उस घर का नक्शा खुदा ने दावीद को दिया था। And David exactly knew the place where the house of God is going to be built. और दावीद यकीनन जानता था कि खुदा का घर कहाँ तामीर होने वाला है। Having received the pattern or the blueprint from God, खुदा से उस घर का नक्शा पाने के बाद he passed on the blueprint to Solomon his son. उसने अपने बेटे श्लोमो को ये नक्शा जो है वो दे दिया। Any great man of God, as they approach the flag end of their life, कोई भी खुदा के अजीम मर्द जब भी उनकी जिंदगी के इख्तिताम तक पहुंचेंगे, they are concerned about the coming generation, the next generation. तो आने वाले मुस्तकबिल में आने वाले नस्ल के बारे में वो ध्यान देंगे या गैरतमंद या तवज्जो देंगे। They wanted to make sure that that person knew God's word, knew God's ways, and is prepared to walk in God's ways. फिक्रमंद होकर वो चाहते हैं कि खुदा की राहों को वो नया नस्ल पहचाने और खुदा की राहों में वो चलें। And I have come to the flag end of my life. और वो तो अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक पहुंचा। I'm passing on my baton to you. इसीलिए मेरी जिम्मेदारी तुझे मैं देता हूँ। And take this baton and run your race. अब तू ये जिम्मेदारी हाथ में लेकर अपने दौड़ में दौड़। And you have to be faithful in this race. और इस दौड़ में तुझे बहुत वफादार रहना चाहिए। It's not going to be an easy race. ये तो बहुत आसान दौड़ नहीं होने वाला है। You're going to be fighting against the powers of darkness. तो गैबी ताकतों से तारीखी की ताकतों के खिलाफ तू जंग लड़ेगा। There will be adversaries that you are going to face in your life. तेरी जिंदगी में बहुत सारी मुखालफतें तू झेलेगा। And you have to be
to prepare. You have to be prepared to face these adverse situations. और ये संगीन हालात जो हो तेरी जिंदगी में आएंगी, उनकी मुखालफत तुझे करनी पड़ेगी। Sometimes when when somebody is passing on the baton to another generation, देखिए, कभी कभार हम देखते हैं कि जब भी एक बुजुर्ग आने वाले नस्ल को ये जिम्मेदारी सौंपता है, and we have seen in several instances that that person either is not prepared or he is not in that kind of maturity. बहुत सारे हवाले में हम ये देखते हैं, वाकयात में ये देखते हैं कि जो नई नस्ल होती है, वो लोग इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं रहते। But God gives these men, these older generation, wonderful wisdom how they can prepare this next generation. लेकिन खुदा अजीम तौर पर इन बुजुर्गों को इल्म देता है, हिकमत बख्शता है कि आने वाली नई नस्लों को कैसे तैयार करें। And we know, if we carefully read the verses that David was telling his son Solomon, अगर हम यहाँ एहतियात से इन बातों को पढ़ें जहाँ दावीद अपने बेटे श्लोमो से गुफ्तगू करता है, David was dealing very carefully with Solomon. दावीद बहुत एहतियात से श्लोमो से पेश आता है। In First Chronicles 22nd chapter, we are not going to turn. हम देखने अभी नहीं जाएंगे वहां, लेकिन पहले तवारीख की किताब बाब नंबर 22, Here David says, Solomon my son is young and tender. यहाँ दावीद कहता है कि मेरा बेटा श्लोमो जो है वो तो कमसिन है और नौजवान है, And he is not yet come to maturity. और वो अभी बालिग नहीं हुआ। There are a lot of things that he is going to be responsible for. इसीलिए मतलब आने वाले दिनों में बहुत सारी बातों को लेकर ये जिम्मेदार होने वाला है। He started giving instructions to Solomon. इसीलिए श्लोमो को वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस या तालीम देना चाहा, Very carefully. बहुत एहतियात से तालीम दी। When we come to Lord Jesus Christ, हमारे खुदावंद यीशुआ की बातों को जब हम आते हैं, when we accept Lord Jesus Christ as our personal Savior, यानी हमारे खुदावंद यीशुआ को हम हमारे निजी नजात दहिंदा करके कबूल कर लेते हैं, God starts forming Lord Jesus Christ, the image of His beloved Son in our lives. हमारी जिंदगियों में अपने प्यारे बेटे यीशुआ का अक्स जो होता है, खुदा हमारे अंदर वो तामीर करता है। In the formative years or in the initial years, शुरू के इब्तिदाई सालों में God gives wonderful promises. खुदा बहुत अच्छे वायदे देता है। He deals very tenderly, very gently with us. हमसे बहुत प्यार से, नरमी से पेश आता है। He is preparing us for the challenges ahead. मुस्तकबिल में रहने वाले तकलीफों के लिए वो हमें तैयार करते रहता He है, is preparing for the warfare. हमें जंग के लिए वो तैयार करते रहता है। And the Lord of the Lord God of hosts is going to be with us. यहाँ हम देखें तो पता चलता है कि हमारे साथ हमारे रब्बुल अफ़वाज रहेगा, We have to exercise our faith. और हमें हमारे ईमान को काम में लाना पड़ेगा, We have to grow in faith. और ईमान में हमें बढ़ना पड़ेगा, We have to grow in grace. और रहम में बढ़ना पड़ेगा, And there are obstacles that we are going to face. और बीच में हमें कई रुकावटें आएंगी, There will be mountains that we need to climb. पहाड़े आएंगे और हमें उन पर ऊपर चलना है, पार करना है। And God expects each one of us to be overcomers. और खुदा हमसे ये चाहता है कि हम सब के सब गालिब आने वाले बने। Look at how Moses passed on the baton to Joshua. हम देखते हैं कलाम में कि जैसे मोशे ने अपनी जिम्मेदारी अगली नस्ल के यहोशुआ को सौंपा था। Look at how Paul prepared Timothy. पौलुस रसूल ने तिमोथियुस को कैसा उसने बनाया है, वो हम देखते हैं कलाम में। Now we see David preparing Solomon. इसी तरह हम यहाँ दावीद को देखते हैं जो श्लोमो को तैयार कर रहा है। Here David was instructing यहाँ दावीद कहता है that the house that is going to be built, कि जो घर वो बनाने वाला है, it is going to be exceeding great. वो बहुत अजीम बुलंद घर होगा। You have to be very careful. इसलिए तू बहुत एहतियात से रहना। You should not put your wisdom in that. तू तेरी हिकमत उसमें मत डालना। You need to understand the pattern. खुदा का नक्शा तू जान, You have to acquaint yourself with God. और खुदा की राहों से तू वाकिफ रह, You have to understand God's ways.
और खुदा की राहों में तू चल, you have to make sure that the house of God is going to be built as per the pattern, as per the blueprint that I'm going to give you. इसीलिए जो खुदा का नक्शा जो खुदा ने मुझे खुद दिया है उस नक्शे के मुताबिक खुदा के घर की तामीर करने में एहतियात रखो। Let us read one verse from 1 Chronicles 28th chapter. पहले तवारीख की किताब बाब नंबर 28 से 28 से एक आयत पढ़ेंगे 9th verse. और आयत नंबर 9। और तू ए मेरे बेटे श्लोमो अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि यहोवा सब दिलों को जानता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे ढूंढे तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा, उसे छोड़े तो रद्द कर देगा। Here very intimately he was calling Solomon. He was telling him, know thou the God of thy father and serve him with a perfect heart. यहाँ बहुत नरमी से दाविद बादशाह कहता है श्लोमो से कि तू जान अपने बाप दादों का खुदा यहोवा को और उसकी इबादत कर। When we serve him, we have to serve him with a perfect heart and with a willing mind. और जब भी हम उसकी खिदमत गुजारी करते हैं तो पूरे दिल से और रजामंदी के दिल से उसकी खिदमत गुजारी अंजाम देना है। And the Lord searcheth all hearts. और यहोवा सब दिलों को जानता है, परखता है। And understandeth all the imaginations of the thoughts. और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। He was clearly instructing, he knew God very intimately. ऐसा बता रहा है कि वो खुदा को बहुत निजी तरीके से वो जानता है। He was telling Solomon that he can read your mind, he can understand, he can discern the thoughts. वो कहता है श्लोमो से कि हमारा खुदा तेरे दिल को जानता है, वो तुझे परखता है, वो तेरे ख्यालों को पहचानता है। He certainly knows what is in your heart. वो यकीनन जानता है कि तेरे दिल में क्या है। And God is going to search diligently what is in your heart. और खुदा जरूर ये जांचेगा, परखेगा कि तेरे दिल में तेरे ख्याल क्या हैं। So David was very gently preparing his son Solomon. देखिए इस तरीके से बहुत नरमी से दावीद अपने बेटे बादशाह श्लोमो को वो तैयार कर रहा है। So Solomon being prepared, तो इस तरीके से श्लोमो तैयार हो गया। now that he became the king over Israel, अब इस्राएल पर वो बादशाह भी बन गया। and he started building the house of God. और खुदा के हैकल को बनाना शुरू किया। And he finished the work of God. He finished building the house for the great God Jehovah. इतना ही नहीं बल्कि हमारे अजीम व खुदा बुलंद खुदा यहोवा का घर हैकल तामीर करके इख्तिताम तक पहुंचाया। And we see here the portion that we have just read in 2 Chronicles 7 chapter. और अब हम देखेंगे दूसरे तवारीख की किताब बाब नंबर 7 में in verse 12. और आयत नंबर 12। And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for a house of sacrifice. और यहोवा रात को श्लोमो पर जाहिर हुआ और उसे कहा, मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। It is a wonderful thing that God is hearing our prayers. ये एक अजीम बात है जानने के लिए कि खुदा खुद हमारी दुआओं पर कान लगाता है। It is a wonderful thing to be chosen by God. खुदा से बरगुजीदा ठहरना, खुदा से चुना जाना बहुत अजीम बात होती है। It is a wonderful thing to be serving God in the appointed places. मुकर्रर मुकामों में हमारे खुदा की खिदमत गुजारी करना भी बहुत अजीम बात होती है। Solomon's job was a lot easier compared to David's job. श्लोमो का काम दावीद के काम के मुकाबले में इतना आसान काम नहीं था। Before he passed on the pattern, David has to face all the adversities. अपने बेटे को नक्शा देने से पहले दावीद बादशाह को बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा था। Now that Solomon finished the work of God, अब देखिए बादशाह श्लोमो घर का काम तमाम करता है। and God was instructing Solomon now, as David is no more with Solomon,
Solomon was directly being instructed from God. अब दावीद श्लोमो के साथ नहीं है क्योंकि वो गुजर गया और अब खुदा यहोवा सीधा श्लोमो से गुफ्तगू कर रहा है। I want to draw your attention to three particular things. मैं आपका ध्यान तीन बातों पर लेना चाहता हूँ। The first one is verse 17. पहली बात आयत नंबर 17। The first portion, and as for thee, if thou wilt walk before me as David thy father walked. और तू अगर मेरे हुजूर वैसे ही चले जैसे तेरा बाप दावीद चलता रहा। See, Solomon certainly knew that see how David walked. श्लोमो जानता था यकीनन कि दावीद किस तरीके से खुदा के सामने चलता था। Even in our families, हमारे घराने में भी we have kids at our home. हमारे घरों में बच्चे रहते हैं। When father or mother they walk, जब भी माँ या बाप चलते रहते हैं, and there are see some see you hear the some steps see from behind. आपके पीछे से कुछ कदम की या आहट आप सुनते हैं। And there are little footprints see when you are walking behind you. और जब आप चलते रहते हैं तो आपके पीछे छोटे छोटे कदम के निशान आप देखते हैं। Your son and your daughter is going to imitate. आपके बेटे या बेटी आपका नकल उतारते रहते हैं। Knowingly, unknowingly, they are following your footsteps. जाने अनजाने में आपके कदमों की पैरवी करते रहते हैं। I'm not sure how you and I are going to impress, how we are going to inspire the next generation. मैं तो ये इस बात से नावाकिफ हूँ कि मैं या आप मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों पर क्या असर डालने वाले हैं। At the end of your life, at the end of my life, if I can inspire the next generation, that's what I can cherish for eternity. आपकी जिंदगी के खात्मे में, मेरी जिंदगी के अंत में अगर हम मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों पर असर डाल सकेंगे तो इसका मतलब होता है कि हमारी जिंदगी मुकम्मल तरीके से मकबूल है। If somebody has followed, see when we walk in Lord's ways and somebody has followed us very closely, अगर हम खुदा की पैरवी करते हैं और हमारे पीछे कोई और हमारी पैरवी करेगा and taken the baton और जिम्मेदारी हमारे हाथ से ले लेगा and faithfully ran the race, और वफादारी के साथ उसके सामने रखा गया दौड़ेगा, bringing glory into God's name. और खुदा के नाम को जलालवर जाहिर करेगा। So this is very important. ये है बहुत अहम बात। Now God is reminding Solomon, see how your father David has walked. अब खुदा श्लोमो को याद दिला रहा है कि देख तेरा वालिद दावीद किस तरीके से उसने जंग जीता है। In Hebrews 12th chapter, we are not going to turn. हम देखने वाले नहीं हैं बल्कि इब्रानियों की किताब बाब नंबर 12 में in 12th chapter we see cloud of witnesses. वहाँ हम देखते हैं बहुत सारे गवाहों का झुंड या उनका उब्र हम देखते हैं। These cloud of witnesses are like wonderful examples for us. ये गवाहों का झुंड जो है ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई की बात होती है। They are men and women of faith. वो लोग कौन हैं? खुदा में ईमान रखने वाले मर्द हैं, औरत हैं। These people have shown us what they can do, what we can accomplish through faith. उन्होंने ये दिखाया कलाम में कि ईमान के जरिए से किन किन बातों को आप अंजाम में ला सकते हैं। So Solomon was instructed to carefully look at the footprints of David. इसीलिए दावीद की पैरवी करने के लिए श्लोमो को भी बताया जा रहा है। He has to follow his example. उसका तमसील जो है दावीद की तमसील जो है उस पर श्लोमो को अमल करना है। That is the first thing that he ought to do. ये है पहली बात जो श्लोमो को करनी है। So not only see the things that he ought to do, ये बातें जरूर ही श्लोमो को करना पड़ेगा। there are some don'ts that he should not do. लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें उसे नहीं करना पड़ेगा। In verse 19 we see, हम पढ़ते हैं 19वीं आयत में, but if you turn away and forsake my statutes and my commandments which I have set before you, and shall go and serve other gods and worship them. पर अगर तुम बरगश्ता हो जाओ और मेरे आईन और अहकाम को जिनको मैंने तुम्हारे आगे रखा है तर्क कर दो और जाकर गैर माबूदों की इबादत करो और उनको सिजदा करो। So he shouldn't do, see, as per verse 19.
यहाँ 19वीं आयत में जो बातें हैं इनके मुताबिक उसे नहीं करना चाहिए था। He should not go after other gods, strange gods. गैर मामूदों के पीछे उसे नहीं जाना चाहिए। So that is the second see that we want to see. ये है दूसरी बात जो हम देख रहे हैं। And the final one that we want to see is verses 13 and 14. और 13वीं और 14वीं आयतों में तीसरी बात लिखी हुई है। Especially the verse 14 is going to be the key for the recovery for any loss. 14वीं आयत में हम देखते हैं कुछ बातों को जो हर एक नुकसान को भरने वाली बातें हैं। So we're going to focus on these three things. तो इन तीन बातों पर हम तवज्जो करेंगे। So Solomon has to follow the example of David. That's the first thing we're going to meditate. तो पहली बात जिसका हम मुताला करने वाले हैं वो ये है कि श्लोमो को अपने बाप दावीद की पैरवी करनी है। So Solomon started very promisingly. इसीलिए श्लोमो बहुत वफादारी से शुरू किया। He started living up to father's expectation. और उसके वालिद साहब दावीद की चाहत के मुताबिक वो चलने लगा। He was young and tender. और वो बहुत नरम था, वो कमसिन था। Let's see how he was walking in his early days. 1 Kings 3:3. पहले सलातीन की किताब बाब नंबर 3 की तीसरी आयत। 1 Kings 3:3. उसके पहले अय्याम में वो चलता कैसा था हम देखेंगे। पहले सलातीन 3 का 3। And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father. Only he sacrificed and burned incense in high places. और श्लोमो यहोवा से मोहब्बत रखता और अपने बाप दावीद के आईन पर चलता था। इतना ज़रूर है कि वो ऊंची जगहों में कुर्बानी करता और बखूर चलाता था। In the early days, God was very pleased with Solomon. पहले दिनों में शुरू में यहोवा खुदा श्लोमो से बहुत खुश था। And God appeared to Solomon. और इसीलिए यहोवा खुदा ने श्लोमो को दिखाई दिया। And she asked him, ask what I shall give thee. और उसे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं। And he humbly asked for understanding heart and discernment to know what is good and what is bad. और बहुत हलीमी से वो पूछता है कि मुझे ऐसा दिल बख्शना कि मैं जान लूं कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हिकमत का दिल मुझे देना। Solomon certainly knew that he is very immature. श्लोमो यकीनन जानता था कि वो बहुत ही कम अकल वाला है। Solomon certainly knew that he is certainly incapable. वो जानता था कि वो बालिग नहीं है और उसकी हिकमत काफी नहीं है। Immature and incapable to manage the affairs of the kingdom of God, kingdom of Israel. इसराइल की बादशाहत, खुदा की बादशाहत को संभालने की सलाहियत और काबिलियत उसमें नहीं थी। इस बात से वो वाकिफ था। So it pleased God not only to give him a wise and understanding heart, but God also gave him riches and honor. इसीलिए खुदा को बहुत पसंद आया कि उसे हिकमत का दिल दे और इल्म के साथ ही साथ उसे दौलत और शान और शौकत भी खुदा ने बख्शा। There is no one in the Bible that we see other than Lord Jesus Christ who was bestowed with this kind of wisdom and riches and honor. हम पूरे बाइबल में यहोवा की किताब में कहीं भी दूसरे शख्स को हम नहीं देखते जिसको मतलब हमारे खुदावंद यहोवा को छोड़कर कोई और दूसरा शख्स नहीं है जिसको खुदा ने खुद इतनी हिकमत बख्शी है या शान और शौकत दी है। So Solomon started very well. इस तरीके से श्लोमो बहुत अच्छे तरीके से वो शुरू किया था। People understood that their king is bestowed with great wisdom. लोगों को पता चल गया कि अपने बादशाह को खुदा यहोवा ने बहुत हिकमत दी है। His name and fame spread throughout the land and far off places. और उसका नाम, उसका शान और शौकत बहुत दूर दूर तक पहुंच गए। People came from far to hear him. इसीलिए उसकी बातें सुनने के लिए बहुत दूरी से लोग आने लगे। Queen of Sheba came from far to hear him. शेबा की मल्लिका उसे देखने के लिए, बातचीत करने के लिए वो आई थी। So he had name and fame. इस तरीके से उसको नाम मिला, शान और शौकत मिले। Riches and honor. उसको शान और शौकत और इज्जत और बहुत दौलत भी मिली थी। So Solomon's beginning was very impressive. इस तरीके से श्लोमो का शुरुआत जो है बहुत अच्छा था। Sadly in the later years, लेकिन गमज़दा की बात ये होती है कि उसके बाद के अय्याम में Solomon started drifting away from following the Lord. हमारे खुदा यहोवा की पैरवी करने से श्लोमो धीरे धीरे टल गया था। In 1 Kings 11 chapter we are not reading it. हम देखने वाले अभी नहीं है, लेकिन पहले सलातीन 11वां बाब में
Solomon loved many strange women, वहाँ हम देखते हैं कि श्लोमो ने बहुत सारी अजनबी औरतों से उसने प्यार रखा था and his wives turned away his heart from God. और उन औरतों ने खुदा की पैरवी करने से उसका दिल जो है उसे बदल डाले। Our heart is, deceitful above all things and desperately wicked. हम जानते हैं कि हमारा दिल जो है वो हीलाबाज है और सब चीज़ों में धोखाबाज है। And Bible clearly wants us to understand our heart, how wicked it is. और बाइबल यहोवा की किताब साफ साफ हमें जताती है कि हम जानें कि हमारा दिल कितना खराब है। And Lord Jesus Christ tells us, Son, give me thine heart. इसीलिए यहोवा हमारे खुदा कहते हैं कि ए मेरे बेटे तेरे दिल मुझे दे, Out of thine heart rivers of water are going to flow. क्योंकि तेरे दिल से जिंदगी के दरिये बहते हैं। So Solomon was, started, drifting away from the plan and purpose of God. इस तरीके से श्लोमो खुदा के मकसद से मंसूबे से वो दूर हटकर गुमराह हो गया। So in a way, name and fame and riches and honor, they were the reasons for him to drift away from following the Lord. एक तरीके से अगर देखेंगे तो जो नाम शान शौकत दौलत उसे मिली थी ये सारी बातें उसको खुदा से दूर होने के लिए वजह बन गए। So God generally blesses not only with the heavenly blessings, He also blesses us with the earthly blessings. तो खुदा हमें सिर्फ आसमानी बरकतों से नहीं बल्कि इस दुनिया के दुनियावी बरकतों से भी हमें मुबारक करता है। But we should always focus on the giver of the gifts rather than on the gifts itself. लेकिन जो ये बरकतें देने वाला है उस पर नजर हमें हमेशा रखनी है, ना कि बरकतों पर। We see. Let's read a couple of verses from 1 Kings 11 chapter. देखेंगे पहला सलातीन 11वां बाब से कुछ बातें हम देखेंगे। 5th chapter, 11th chapter, and 5th and 6th verses. 5वीं और 6ठी आयतें। क्योंकि श्लोमो सैदानियों की देवी इस्तारात और अमोनियों के नफरती मिल्कोम की पैरवी करने लगा और श्लोमो ने यहोवा के आगे बदी की और उसने यहोवा की पूरी पैरवी ना की जैसी उसके बाप दावीद ने की थी। Here we see how wicked the heart of how the human heart is. यहाँ हम देखते हैं कि इंसानी कल्ब जो है, दिल जो है, कितना धोखेबाज है। Solomon went after Ashtaroth. श्लोमो जो है वो अश्तारोत के पीछे हो गया। And he started following Milcom, the abomination of the Ammonites. और अमोनियों के नफरती मिल्कोम की पैरवी करने लगा। And he did evil in the sight of the Lord. और यहोवा के आगे उसने बदी की। He went not fully after the Lord as did David his father. और उसके बाप दावीद ने जिस तरीके से यहोवा की पैरवी की थी उसने ना की। And God did warn him several times. और खुदा ने बहुत सारी बार उसे चेतावनी दिया था। In the 9th verse we see God appeared to him twice. और हम 9वीं आयत में देखते हैं कि यहोवा खुदा उसे 2 बार दिखाई दिए। And in 10th verse we see he should not go after other gods. और 10वीं आयत में हम देखते हैं कि बताया गया कि तू गैर माबूदों की पैरवी ना करो। When your heart and my heart is very young and tender, जब हमारा मतलब मेरा और आपका दिल जब बहुत नरम रहता है, it is sensitive to hear the word of God. खुदा का कलाम सुनने के लिए बहुत सेंसिटिव रहता है। We take time to hear the word of God. खुदा के कलाम को सुनने के लिए हम वक्त लेकर पढ़ते हैं। In our quiet time we pay attention to hear what God is telling me to follow him. और जैसे ही हम खामोशी के ध्यान में रहते हैं उस वक्त में खुदा मुझसे क्या बात करना चाहता है करके हम कान खोल कर सुनते रहते थे। So Solomon's heart, it drifted away. लेकिन यहाँ देखते हैं कि श्लोमो का दिल खुदा से दूर हट गया। God instructed him, warned him several times. बहुत सारी बार खुदा ने श्लोमो को चेतावनी दी। The heart was divided. लेकिन श्लोमो का दिल वो दो तरह का बन गया। He lost the heavenly wisdom and the discernment. उसने आसमानी हिकमत और आसमानी इल्म जो उसको खुदा ने दी थी वो खो बैठा। So Lord was very angry. अब खुदा बहुत गुस्से में आ गया, गजब में आ गया। In the later years we see the great loss.
और बाद में जो साल गुजरे हैं उन सालों में हम देखते हैं कि वो बहुत नुकसान पाया था। Kingdom of Israel was divided. इसराइल की बादशाहत जो थी वो तकसीम हो गई, बट गई। So when Solomon failed God, इस तरीके से जब श्लोमो खुदा के सामने गिर गया, he failed the next generation. आने वाली नस्ल के सामने भी वो गिर गया। He was not able to prepare the next generation. इसका मतलब ये है कि आने वाली नस्ल को वो तैयार नहीं कर पाया। He could not pass on the baton like his father. अपने बाप दावीद ने जैसे खुदा की जिम्मेदारियां उसके हाथों में सौंपी, वो आने वाली नस्लों के हाथों में सौंप नहीं सका। This could happen to any one of us. ये हमें किसी को भी हो सकता है। If you are not careful to walk in God's ways. खुदा की राहों में जाने में, चलने में अगर एहतियात से आप नहीं रहते तो So we have to pay attention to God's word. इसीलिए खुदा के कलाम पर हमें ध्यान देना चाहिए, तवज्जो करना चाहिए। So God not only instructs us, disciplines us, इस तरीके से खुदा हमें अपने डिसिप्लिन से, अपने कलाम के डिसिप्लिन से ले जाता है, and he is going to punish us because of our wrongdoings. और हमारी गलतियां जो होती हैं उनके लिए खुदा हमें सजा भी देता है। There are wonderful promises that God has given us to recover everything that we have lost. लेकिन जो कुछ हमने गवा बैठा है उन सभी चीजों को फिर से वापस हासिल करने के लिए कलाम में खुदा ने बहुत सारे वायदे दिए। If we are willing. अगर हम चाहें तो, If we are willing, we have a key today. अगर हम चाहें तो हमारे पास ये एक कुंजी है। If you are hearing God's word today, अगर आप आज खुदा का कलाम सुन रहे हैं, if you think that you have lost everything, अगर आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ मैंने खो बैठा, बर्बाद हो गई मेरी जिंदगी, I have come to a place and I have come to a point where I have lost even the hope of recovery. मैं इस जगह तक, इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं जहां मुझे उम्मीद ही नहीं है कि मैं फिर से बहाल हो जाऊंगा। Don't lose your heart. अपना दिल छोटा मत कर लेना। There is a key that you can hold on to. तेरे पास और भी एक कुंजी है जिसे तू पकड़ सकता है। The key is 2 Chronicles 7:14. और वो कुंजी या चाबी ये है कि दूसरा तवारीख 7 का 14। 2 Chronicles 7:14, all of us together. दूसरे तवारीख की किताब बाब नंबर 7 और आयत नंबर 14 सब मिलकर पढ़ेंगे। तब If अगर my मेरे people लोग which are जो called मेरे by नाम my से name shall कहलाते humble हैं, themselves and pray and seek my खाकसार face and बनकर turn from their दुआ wicked करें ways, और मेरे then will I दीदार के hear from तालिब heaven हों and will और forgive अपनी their बुरी sin and राहों will से heal their फिरें, land. तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। So 3 things are important. यहाँ 3 बातें, अहम बातें बताई गई हैं। If my people which are called by my name shall humble themselves. अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। Humility is very important. बहुत हलीम बनना, खाकसार बनना जरूरी है। If we are really humble, अगर हम सच में खाकसार या हलीम बनेंगे, if God can see the character of humility in your life, in my life, अगर हमारी जिंदगी में, आपकी मेरी जिंदगियों में खुदा इस तरीके की हलीमी को पहचान सकता है, that's a wonderful Christian virtue. तो ये एक बहुत ही यीशुई सिफत है। It's a Christ-like character. ये यीशुआ का बराबर किरदार है। Not every Christian we see in this world do have this kind of humility. इस दुनिया में जो भी हम यीशुई इंसान को देखेंगे उन सबों में इस तरह की हलीमी नहीं होती। If you are called as Christian believers, अगर आप यीशुई मोमिन कहलाते हैं, you and I have to exercise this kind of humility. तो आपको और मुझे भी इस तरह की हलीमी को हमारी जिंदगी में लागू रखना जरूरी है। If we humble ourselves, अगर हम अपने आप को पस्त बना लेंगे and seek His face, और उसकी तलाश करेंगे, उसके चेहरे की तलाश करेंगे। we are looking at elsewhere. देखो हम तो और कई जगहों में हम देख रहे हैं, we are looking at people. हम लोगों पर नजर डाल रहे हैं, we were not seeking His face. लेकिन उसका चेहरा जो है उसे हम ढूंढ नहीं रहे हैं। If you are going to look at Him, अगर आप उसे देखेंगे, we're going to be enlightened. आप जरूर मुनव्वर हो जाएंगे। And also we have to turn away from our wicked ways. इतना ही नहीं बल्कि हमारे बुरे राहों से हमें फिरना है। Whatever is contrary to the word of God, खुदा के कलाम के मुखालिफ बात जो भी होती है,
we have to turn away from our wicked ways. उन बातों से, उन बुरी बातों से हमें वापस लौटना है। Do not take anything into your hands. आपके हाथों में कुछ भी अपने आप मत लेना। Even if somebody has defrauded you, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, do not take the vengeance into your hands. आप फिर उस पर बदला लेना अपने हाथों में मत लेना, Forgive. उसे माफ कर देना। You have to understand and you have to exercise this forgiveness in your life and in my life. आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भी हमें ये मुआफी जो होती है इस पर अमल करना है और इस पर हमें कसरत भी करनी है। Forgiving people and then forgetting it is going to heal lot of wounds. लोगों को मुआफ करना और उसे भूल भी जाना बहुत सारे घावों को सुखा देता है। That is how you can go and climb the higher mountains, higher peaks. इस तरीके से आप एक पहाड़ी चोट से दूसरे पहाड़ी चोट तक आप पहुंच सकते हैं। So humility is important. इसीलिए हलीमी जो है वो बहुत अहम है। Seeking His face, seeking God with our whole heart is important. हमारे पूरे दिल से खुदा की पैरवी करना, उसकी तलाश करना बहुत अहम है। We have to turn from wicked ways. बुरे कामों से हमें मन फिराना है, लौटना है। I want to draw your attention to three particular C verses. यहाँ 3 आयतों पर आपका ध्यान मैं चाहता हूँ। In these three verses, इन 3 आयतों में we're going to see how the men of God, when they are about age, when they have become older, how they are actually preparing the next generation. यहाँ हम देखते हैं इन 3 आयतों में कि कैसे खुदा के मर्द, खुदा के लोग जब उनकी उम्र इख्तिताम पर आ चुकी है तो आइंदे की नस्ल जो होती है उनको किस तरीके से वो लोग तैयार करते हैं। Here either God is giving them direct instructions or the previous generation is passing on the baton to the next generation. यहाँ हम देखते हैं कि खुदा खुद सीधा उनको ये इंस्ट्रक्शंस देता है, ये जानकारी देता है, या वो लोग खुद दूसरे आइंदे की नस्ल को ये जानकारी देते हैं और जिम्मेदारी सौंपते हैं। This was how the next generation was prepared. इस तरीके से आइंदे की नस्ल को तैयार किया जाता है। And this was how Lord is preparing you and I today. इसी तरीके से खुदा आपको और मुझे भी आज तैयार कर रहा है। The first portion that we are going to read is from Joshua. पहला हिस्सा जो हम पढ़ने वाले हैं वो यहोशुआ की किताब में से है। First chapter, यहोशुआ की किताब बाब नंबर 1, 7 and 8. और 7 और 8वीं आयतें। तू फख्त मजबूत और निहायत दिलेर हो जा के एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदे मोशे ने तुझको दिया, उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। तौरा की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। So here we see in second verse we see God is telling Joshua, Moses my servant is dead. यहाँ दूसरी आयत में खुदा कहता है यहोशुआ से कि मेरा बंदा मोशे तो मर चुका है। Now therefore arise and go over this Jordan. और कहता है कि तू अब उठ और योर्दान के पार उस मुल्क में जा। And in 7th verse, he was telling Joshua that thou mayest observe to do according to all the law. और 7वीं आयत में वो कहता है कि जो कुछ मैंने उस तोरा में बताई थी, जो बातें, उन पर अमल करना। He should not turn to the right or to the left. तो दाहिने हाथ ना मुड़ना, ना बाएं मुड़ना। And the book of the law shall not depart out of his mouth. और तोरा की
किताब जो है वो उसके मुंह से ना हटना चाहिए। He has to be very careful. वो बहुत एहतियात से रहना है उसको। He has to observe to do according to all that is written therein. उस तोरा की किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर जरूर ही एहतियात से अमल करना चाहिए। That was how Joshua was instructed. इस तरीके से यहोशुआ को पैगाम दिया गया और जानकारी दी गई। And the second portion we have read earlier, but we'll read again from 1 Chronicles 28:9. और एक हिस्सा हम पढ़ेंगे जिसे हमने इससे पहले भी पढ़ा है, वो है पहला तवारीख 28वां बाब और आयत नंबर 9। 28:9. Yes. हाँ। और तू ए मेरे बेटे श्लोमो अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि यहोवा सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। So he's telling him to serve him with a perfect heart and with a willing mind. इसीलिए खुदा श्लोमो से कह रहा है कि तू पूरे दिल से मेरी पैरवी करना। Finally, he warns him in the 9th verse in the later portion, if thou forsake him, he will cast thee off forever. और आखिरकार यहाँ एक चेतावनी देता है 9वीं आयत आखिरी हिस्सा में कि अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। The last portion that we want to see is from 1 Timothy 2:1. और आखिरी हिस्सा जो हम देखने वाले हैं वो है पहले 2 Timothy दूसरे तिमोती की किताब 2:1. बाब नंबर 2 और आयत नंबर 1। Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. बस ए मेरे फर्जंद तू उस फजल से जो माशियख यीशुआ में है मजबूत बन। We see Paul is dealing very gently with Timothy. यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस रसूल तिमोथियुस से बहुत नरमी से पेश आ रहा है। My son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. वो कह रहा है कि ए मेरे फर्जंद तू उस फजल में जो यीशुआ माशियक में है मजबूत बन। Paul had a great desire to see Timothy. पौलुस को बहुत बड़ी चाहत थी कि तिमोथियुस को देखे। When he was in prison, जब वो कैद खाने में था, he was bound in chains. वो जंजीरों में रहा था। In 2 Timothy 1:4 we see, दूसरे तिमोथियुस के 1:4 में हम पढ़ते हैं, greatly desiring to see thee, because being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. और तेरे आंसुओं को याद करते रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ ताकि खुशी से भर जाऊं। He wanted to see Timothy established as a God servant. वो चाहता था कि तिमोथी एक मर्द खुदा बनकर खुदा की खिदमत गुजार बने। He wanted to see Timothy successful in his ministry. अपनी खिदमत गुजारी में कामयाबी हासिल करने वाले जैसा तिमोथी को वो देखना चाहता था। And he was reminding Timothy that God has given us the spirit of power, not the spirit of fear. इतना ही नहीं बल्कि तिमोथी को वो याद दिलाता है कि खुदा उसको बुज़दिली नहीं दी है, बुज़दिली की रूह नहीं दी है, बल्कि कुदरत की रूह बख्शी है। In 2 Timothy 3:14 to 17, दूसरे तिमोथी 3 का 14 से लेकर 17 तक, here we see Paul is instructing Timothy how he can walk in God's ways. यहाँ पौलुस रसूल तिमोथियुस को बता रहा है कि वो खुदा की राहों में कैसे चल सकेगा। In 14th verse we see, from childhood you have known these scriptures. 14 और 15वीं आयतों में वो कहता है कि तू तेरे बचपन से तू जानता है इन नविश्तों को कि तू नजात इन नविश्तों के जरिए से कैसा पा सकता है। They were able to make thee wise unto salvation. ये नविश्तें जो हैं ये नजात के लिए तुझे इल्म हासिल हुए इंसान जैसा बनाएंगे। So now that he is saved, अब तो ये नजात याफ्ता हो गया, and he has to use the word the scripture wisely. यहाँ लिखता है कि ये नविश्ते जो हैं इन्हें तू दानाई से In the 16th verse we see, all scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction and instruction in righteousness. 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि हर एक नविश्ता जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और
इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है। So he has to use the scriptures in a right manner. इसी तरीके से तिमोथियुस को खुदा के नविश्ते या खुदा का कलाम जो है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। You have to reprove people. क्योंकि तुझे क्या करना है, लोगों को लोगों को मलामत करना है, You have to correct people. उनको इस्लाह देना है, You have to instruct people उनको तालीम देना है using the scripture. नविश्तों के जरिए, किताब के जरिए। And finally, he says in 17th verse और आखिर में 17वीं आयत में वो कहता है that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। And God has prepared us to do exploits for him. और खुदा ने हमें इसलिए हमें बनाया है, तैयार किया है ताकि हम खुदा के लिए बहुत अजीम काम कर पाएं। We have been created for good works. हमें इसलिए खुदा ने बनाया ताकि हम उसके लिए नेकोकारी करें। We have to be thoroughly furnished unto all good works. हर एक नेकी के वास्ते हमें हमेशा मुस्तैद रहना है। Your ministry may not be same as my ministry. आपकी खिदमत गुजारी शायद मेरी खिदमत गुजारी जैसी नहीं है, But you have to do your own good works. लेकिन आपको तो आपका नेक काम जो आपको दिया गया है उस पर अमल करना है, That are appointed unto you. जो आपके लिए मुकर्रर किए गए हैं उन पर अमल करने हैं। Thank and praise God for giving us one more year, new year. हमारा खुदा का शुक्र है क्योंकि उसने और एक नया साल हमें दे दिया। As believers, we enter into this world, into this new year with great hope. हम यीशुई मोमिन होकर हम बहुत उम्मीद के साथ इस नए साल में दाखिल हुए हैं। We enter into this new year with great expectation. बहुत उम्मीद के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इस नए साल में हम दाखिल हुए हैं। We are looking for promises. हम तो वायदों के लिए देख रहे हैं। We are also looking for the fulfillment of all promises that we have received. इतना ही नहीं बल्कि माजी में जो खुदा ने हमें पुराने वायदे दिए हैं उनका मुकम्मल होना, उस बात के भी हम मुंतजिर हैं। Not only taking hold of these promises, but we have to make sure that our heart is right to do exploits for God. हाँ, वादों को हाथ में रखना और वादों को खुदा से मांगना ही नहीं, इतना ही नहीं बल्कि खुदा के लिए बड़े अजीम काम करने के लिए दिल को तैयार भी रखना चाहिए। In the biography of Hudson Taylor, अगर हम हडसन टेलर की सीरा देखेंगे, it is written, expect great things from God, attempt great things for God. खुदा के लिए, खुदा से बहुत बड़ी बड़ी बातें चाहो, मांगो और खुदा के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करो। So make sure that you reconsecrate unto God. Now. इसीलिए आप इस बात पर तवज्जो कीजिए कि आप अपने आप को खुदा के लिए फिर से आप कॉन्सेक्रेट कीजिए। Let nothing come between you and the wonderful Savior. आपके और आपके अजीम नजा दहिंदा के दरमियान कुछ भी ना आए। He is ever loving, ever caring and never failing God. वो हमेशा प्यार करने वाला है, हमेशा वो हमें हर चीज देने वाला है और वो लातब्दील है। Let us reconsecrate our lives unto Him who loved us and gave Himself for us. इसलिए हमारी जिंदगियों को फिर से उसके हाथों में सौंप देंगे जिसने हमें सब कुछ दिया है, नजात भी दी है। Now that we have gathered around Lord's table, अभी तो हम हमारे खुदा की मेज के इर्द गिर्द आ चुके हैं। there are emblems on the table. अब हम देखते हैं कि इस मेज पर कुछ निशानियां हैं। These emblems they show us that there is a body that is broken for us. उन निशानों में हम देखते हैं कि एक रोटी है जो बताती है कि हमारे वास्ते यीशुआ का बदन तोड़ दिया गया। There is precious blood shed for us. और हमें ये भी याद दिलाने वाली चीज है वहां पे कि हमारे वास्ते बेशकीमत खून बहाया गया। The reason why the table is kept in the center of the hall. इस हॉल के बीच में, सरासर बीच में इस मेज को इसलिए रखा गया है It is equally accessible for all of us. क्योंकि हम सबों को वो बहुत करीब रहे। In God's sight we are equally precious. हम खुदा की नजर में हम सब बराबर हैं। We are equally important. हम सब एक सा अहमियत रखने वाले हैं and we are equally necessary. और हम सबों की जरूरत खुदा को है। Let us examine our hearts and search our hearts diligently. इसीलिए हमारे दिलों को हम बहुत एहतियात से जांचेंगे और परखेंगे। May the Lord bless this portion. खुदावंद इस कलाम पर अपनी बरकत बख्शें।